Yesterday we had discussed related to the historical background of the evolution of political system or the governance in our country. That is the pre-independence part. Different committees, constituent assembly, legislature councils, and the involvement of British government with the Indian people fighting for the freedom of country. That we had discussed some of the aspects of that in the background. So today we will be coming straight on to the constitutional aspect of governance, in which one thing which is very important to discuss, that is the prominence or that is the constitution, supremacy of the constitution. All we can say also known as constitutionalism. Constitutionalism. There is this feature which makes our set of procedures for governance different from other world countries. Historical background we had discussed. Making of Indian Constitution, some of the aspects we had discussed, some important events, objective resolutions. I had told you yesterday that the resolutions which had taken, which has been incorporated by the Constituent Assembly, that was objectivity, fairness, dignity, constitution or the governance being republic or democratic. These were the objective revolutions, and all these procedures and the set of rules must be in written form. That was the objective resolution that we had discussed. And there were some important committees which were basically involved in the making of Indian Constitution, which I have told you very first or very important. That committee was the drafting committee, chaired by, or we can say the chairman of that Constituent Assembly was Dr. Bhimrao Ambedkar, and some other committees were also that I had told you, that was the flagship, that is a Finance and Draft Committee, Flag Committee, Union Powers Committee. That these were few committees which I had told you, I think yesterday, and that those we have mentioned these committees well in our these notes also, so we can go through repeatedly over a period of time while preparing. तो ये चीज हम डिस्कस कर चुके थे कमेटी के बारे में। अब उसके बाद हमने 1946 में सब 1950 जब डेवलपमेंट हुए, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो कॉन्स्टिट्यूशन की मेकिंग थी, उसमें कुछ एक अदर कंट्रीज का के कॉन्स्टिट्यूशन को के इम्पोर्टेंट और वी कैन से प्रोमिनेंट फीचर्स और वी कैन से द इम्पैक्टफुल फीचर्स को इनकॉर्पोरेट किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा। स्पेशली वो सारी चीजें जो है रिपोर्ट की जाती थी ड्राफ्टिंग कमेटी को, जो डिफरेंट कमेटी थी वो रिपोर्ट करती थी ड्राफ्टिंग कमेटी को किसी भी ऐसे चेंज को इनकॉर्पोरेट करने के लिए। तो ये हम कल थोड़ा इसको हम डिस्कस कर चुके थे। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के, अब हम स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन पर आते हैं। कुछ एक जो इम्पोर्टेंट है कमेटी के बारे में हम बता चुके हैं। सेम फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, that is the brief description of important features,
शेड्यूल और इस सब डिस्कशन से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा दैट इज द बेसिक स्ट्रक्चर जो आज के कंटेम्प्रेरी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और काफिले से केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला जो एक केस फाइल हुआ था जिसमें ये चीज भी मैं आपको कल हाँ वो लैंड से वो एक्चुअली वो एक ऑब्जेक्ट था उसको केस फाइल हुआ था जो उस टाइम पर जो कॉन्स्टिट्यूशन के एक्सपर्ट थे उन्होंने कहा था कि आप आर्टिकल 68 का रेफरेंस लेकर के आप केस जो है वो फाइल कर सकते हैं। तो केशवानंद भारती चाहिए आप लोगों को। हेलो हेलो सर, you are audible but not really. आवाज है? No sir, not really. कहीं दिक्कत क्यों हो रही है? ओके मैं चेक करता हूँ। हेलो, is there any change? Hello, Yes sir. are you getting my voice clear? Clear now. Yes. now listen. तो कल हमने डिस्कस किया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है लिविंग लॉ इस सब के बारे में कि भी कौन कौन सी ऐसी चीजें जो रेलेवेंट हैं और जिनको कॉन्स्टिट्यूशनल जब कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया जा रहा था तो वो उसके अंदर होना चाहिए। तो ये चीजें कुछ एक थी जो कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करते वक्त ध्यान में रखी गई और अभी भी उनको काफी हद तक उसके अंदर इनकॉर्पोरेटेड रखा गया है। डॉक्ट्रिन ऑफ लिबरल इंटरप्रिटेशन, प्रिंसिपल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग, ये कुछ केसेस में इन सब चीजों को के प्रेसिडेंसेस हमें मिल जाते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की और उसमें पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में जो एक चीज आई थी केशवानंद भारती वाली जो मैं आपको बताना चाह रहा था वो था बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और इसके ऊपर डिबेट हुआ था कि भी बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन का क्या होना चाहिए और इस चीज के लिए जो रेस्पॉन्सिबल केस था वो केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला था। तो सुप्रीम कोर्ट बेसिकली सुप्रीम कोर्ट का क्या रोल है आप लोग बताएंगे कि जो जुडिशरी है या जुडिकेचर है जुडिकेचर में जो एपेक्स बॉडी है एपेक्स बॉडी है वो है सुप्रीम कोर्ट इंडिया के अंदर सुप्रीम कोर्ट है। अब सुप्रीम कोर्ट का रोल क्या है बेसिकली बताएंगे कुछ सुप्रीम कोर्ट के का बेसिक मतलब क्या माने हम रोल क्या है। एक तो डिलीवरिंग जस्टिस दूसरा जो बहुत प्रोमिनेंट रोल है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। हेलो
कुछ जानवी बताएंगे? कार्तिक, कुशाग्र, निखिल बताएंगे? सुप्रीम कोर्ट का जो बहुत प्रोमिनेंट रोल है दैट टच एवरी सिटीजनरी ऑफ इंडिया, बिकॉज जो पॉलिसी मेकिंग है या इनेक्टमेंट ऑफ लॉ है, स्पेशली इनेक्टमेंट ऑफ लॉ, इनेक्टमेंट ऑफ लॉ, उसमें सुप्रीम कोर्ट का रोल क्या है? सुप्रीम कोर्ट को क्या और बोलते हैं हम? सुप्रीम कोर्ट डिफेंड्स कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन को डिफेंड भी करती है। और कॉन्स्टिट्यूशन को डिफेंड करने में क्या करती है कि किसी भी लॉ एंड लेजिस्लेशन को की वैलिडिटी को भी चेक करती है। वैलिडिटी चेक, क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया है assessing every enactment on the basis of assessing on the basis of basic structure of constitution. पार्लियामेंट बेसिकली क्या है? लेजिस्लेचर है, यूनियन लेजिस्लेचर है। पार्लियामेंट जो कानून बनाती है, जो कानून बनाती है। अब उसका वो कानून तो बना दिया, चलिए हमने रिप्रेजेंटेटिव्स अपने भेज दिया पार्लियामेंट में, रिप्रेजेंटेटिव्स भेज दिए और उन्होंने कानून बनाने का प्रपोजल दिया और कानून उन्होंने बना भी दिया। अब वो कानून सही है, कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी की वैलिडिटी उसमें है या नहीं है, ये ध्यान रखिएगा थोड़ा सा कि सुप्रीम फंक्शन है वो है। हेलो, अब आप बताएं। हेलो हेलो सर अभी क्लियर है बट बार बार बीच में ब्रेक। हेलो, अच्छा देखिए कोशिश करेंगे जिससे। तो ये एक बेसिक फंक्शन है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को उस केस के अंदर डिस्कस किया। बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? अभी लेटेस्ट भी इस चीज के ऊपर बात चल रही है। अभी आपको जो मैं करंट एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन पॉलिटी बताऊंगा, तो अभी केशवानंद भारती केस फिर से रेलेवेंस में आया है, बिकॉज जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बहुत क्लियरली अनएम्बिग्यूटी के साथ डिस्कस या डिफाइन किया ही नहीं जा सकता, बिकॉज इट हैज नॉट बीन written, it cannot be written also. What can be done against this is basically we can draw some of the interpretations using the articles and schedules and the aspects, a lot of aspects, main important aspects mentioned in the preamble. तो उसके बेसिस पर ड्रॉ किया जाता है बेसिक स्ट्रक्चर, और जो भी नए कानून या ऐसी पॉलिसी जो सिटीजनरी को डायरेक्टली अफेक्ट कर सकती है, तो उसके ऊपर वो अभी भी म्यूटेबल है। अभी भी उस पर कोई भी वाइड कंसेंसस नहीं आया है कि एक्चुअल में ये है क्या। बट सुप्रीम कोर्ट इज रेस्पॉन्सिबल टू इंटरप्रेट ऑल दैट। तो इसके अंदर है क्या बेसिकली? सबसे पहले तो जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है उसको मोटे तौर पर किस तरह से डिफाइन किया है, उसके कुछ एक फीचर्स हैं। वो है डोमेनियन और सुप्रीमेसी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। अगर हम बात करते हैं कंट्री की, अपने कंट्री की, तो हमारी कंट्री के अंदर एक तो यूनियन लेजिस्लेचर हो गई, दूसरे नंबर पर हो गई हमारी यूनियन एग्जीक्यूटिव,
और तीसरे नंबर पर होगी हमारी जुडिकेचर, ये चीज होगी। अब जब ये तीनों चीज है तो ये इन तीनों चीजों के अंदर सेपरेशन ऑफ पावर है। तो ये तीन चीजें हैं, एक तो कानून बनाती है, एक कानून का को कैरी आउट करती है, क्रियान्वयन होता है, ये मेकिंग है, मेकिंग अमेंडमेंट ऑफ लॉ है, और जुडिकेचर इज द फ्रिंज एरियाज। ये अगर मान लीजिए कोई कानून ऐसा बना उसमें बहुत सारी चीजें जो सही तरह से डिफाइन नहीं हो सकती, तो उनको उनके इंटरप्रिटेशन के हिसाब से वो फ्रिंज एरियाज को डिफाइन करती है और जस्टिस डिलीवर करती है। ठीक है जी। अब बात आती है कि ये तीनों एक दूसरे से, हेलो आवाज आ रही है आप लोगों को? हेलो, am I audible? हेलो, यस सर, यस सर, प्लीज यस सर, एक्नॉलेज करते रहिए, बीच बीच में ऐसे टेस्ट होता रहेगा, ठीक है ना? ये तीनों, जब तीनों ही इसमें क्या है, सेपरेशन ऑफ पावर, ये हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का, सेपरेशन ऑफ पावर। ये तीनों अपने आप में सेपरेट हैं। पार्लियामेंट सेपरेट है जुडिशरी से, एग्जीक्यूटिव से, और इन जनरल पार्लियामेंट जो है ये माना जाता है कि वो ओवर रूल करती है अदर टूल, बाकी दो को, और अपनी सुप्रीमेसी एस्टैब्लिश करने की कोशिश करती है। जबकि कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि तीनों सेपरेट हैं और एक दूसरे से हार्मोनियसली लिंक है, ये होने चाहिए। तो अब जब इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है तो फिर क्या चीज है जो इनके बीच में एग्रीमेंट एस्टैब्लिश करेगी? तो इन तीनों के ऊपर जो रखा गया वो रखा गया कि व्हाट इज पैरामाउंट, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन पैरामाउंट है, नाइदर पार्लियामेंट नॉर जुडिशरी नॉर एग्जीक्यूटिव, इनमें से कोई भी पैरामाउंट नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन पैरामाउंट है। किसी भी तरह का कॉन्फ्लिक्ट राइज होता है तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन में उसकी वैलिडिटी चेक होगी कि भाई जो भी चीज आप कर रहे हो या कह रहे हो वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से है या नहीं है। अब उसे चेक कौन करेगा? उसको चेक करने का जो पावर है वो जुडिकेचर के पास है। ये बेसिक, अब बेसिक स्ट्रक्चर के कुछ एक एलिमेंट्स हैं, जिसमें सबसे पहला एलिमेंट है कि अगर कोई भी कानून बनता है या कोई भी पॉलिसी बनती है तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी होनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन के जो एलिमेंट्स हैं जो 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 फॉर द सेक ऑफ सिटीजनरी है वो उसके अंदर होने चाहिए। नेचर एंड स्कोप ऑफ पॉलिटी, जो भी कानून बन रहा है वो सेवरेन एंड रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेटिक होना चाहिए। सेवरेन का मतलब बताइए कुछ, सेवरेन मीन्स? सेवरेन मीन्स मैंने शायद पहले ही बताया होगा आपको। सेवरेन मीन्स, हाँ जी, हेलो, सेवरेन मीन्स कुशागर, कुशागर जी, नफीसा, हेलो, नफीसा, निखिल, हेलो, सुप्रीम, निखिल, हाँ, सुप्रीम, अनलिमिटिंग, यस सर, अनलिमिटिंग, सुप्रीम, और अनरेस्ट्रिक्टिंग। सिर्फ Not control. ये हाँ, अनरेस्ट्रिक्टिंग, अनलिमिटिंग, ये है सेवरेन का बेसिक मतलब। अब ये सेवरेन जो सेवरेन है, तो सेवरेन किस चीज को माना गया है इंडिया के अंदर? सेवरेन क्या है? सुप्रीम क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट पार्लियामेंट, कॉन्स्टिट्यूशन। ये भी पिछले कुछ टाइम पहले आपने देखा होगा कि इंडिया में एक मूवमेंट भी स्टार्ट हुआ था, जो कौन सा मूवमेंट था? अन्ना हजारे वाला था ना, अन्ना हजारे वाला मूवमेंट, जिसमें पार्लियामेंट को रात रात तक बैठना पड़ा था। हाँ?
उसमें ये इंप्रेशन था कि पार्लियामेंट ऑफ द पीपल, द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ इंडिया फंक्शनिंग इन पार्लियामेंट वाज giving the impression that parliament is big, but that was challenged in the court of law later. And thereafter constitution is secular in nature. That is the third basic structure. Fourth basic structure is federal character of the constitution. And federal character का मतलब क्या होता है? फेडरल का मतलब, फेडरल का इंडिया में क्या मतलब है? यूनियनिज्म से मतलब है। अब इसके कुछ एक फीचर हैं। फीचर क्या है कि एनी यूनिट ऑफ यूनियन कैन नॉट ब्रेक इटसेल्फ फ्रॉम यूनियन। अब अगर हम ये कहें कि जी तेलंगाना भारत से अलग होकर के या पंजाब भारत से अलग होकर के कहें कि जी मुझे तो आप एक अलग, मेरी अपनी अलग एक रिपब्लिकन है, मुझे अलग रिपब्लिक होना है, मुझे अलग रिपब्लिक बनना है, तो वो नहीं बन सकता। ठीक है जी। तो ये फेडरल कैरेक्टर जो है वो उसके अंदर इस तरह से एग्जिस्ट करता है। इंडिया इज द यूनियन ऑफ स्टेट्स है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है, कई यूनियन टेरिटरीज है। यूनियन टेरिटरीज वो टेरिटरीज थी जो इंडिपेंडेंस के बाद जो बाद में फ्रेंच है या ड्यूस है जो कॉलोनीज हुआ करती थी, उन्होंने बाद में हैंडओवर की, 1947 के बाद हैंडओवर की, जिनमें आप बात कर सकते हैं काफी हद तक गोवा में भी, गोवा, दमन दीव, ये जो टेरिटरी पौंडीचेरी बेसिकली बाद में यूनियन टेरिटरी पौंडीचेरी थी, जिसको बाद में इनकॉर्पोरेट किया गया और वो इसलिए यूनियन टेरिटरी उनको कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया। लेटर सम ऑफ दिस गोवा जैसे काफी बाद में चल के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग जो है उसको इंडियन स्टेट का दर्जा दे दिया गया। एंड द सेम थिंग इज हैपनिंग विद द दिल्ली आल्सो। द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू एंड लॉ दैट ट्रांसग्रेस द स्ट्रक्चर, है ना, जो जुडिशियल रिव्यू और जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन को, अगर उसको कोई भी कानून उसको ट्रांसग्रेस करता है, ठीक है ना, तो वो जो है उसका लाइकली टू बी ड्रॉन, वो जो है कोर्ट में वो लाइकली दैट आर चांसेस लाइकली टू बी ड्रॉन टू कोर्ट, ड्रॉन टू कोर्ट, मतलब उसके कोर्ट में जाने के चांसेस हैं। ठीक है जी। फेयर एंड फ्री इलेक्शन सिस्टम, ये भी एक बेसिक स्ट्रक्चर है कि जी सबको ये चीज होनी चाहिए। और एक्सेस टू जस्टिस, ये भी एक बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट माना गया। प्रिंसिपल ऑफ रेशनल एंड हम कह सकते हैं रेशनल एंड इक्विटेबल, यस, रेशनल एंड इक्विटेबल। इक्विटेबल मींस इक्विटेबली सिंपली ऐसा समझ लीजिए कि इक्वलिटी, ठीक है ना, एंड फंडामेंटल राइट्स इक्वल टू इक्विटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स, दैट इज कानून का शासन हो, रूल ऑफ लॉ, ये भी एक बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट माना गया। और तीनों जो ब्रांचेस हैं, तीनों जो बॉडी हैं जो गवर्नेंस की, वो तीनों जो है उनका पावर जो है वो सेपरेटली क्लियरली डिफाइन और डिमार्केटेड होना चाहिए। और लिमिटेड पावर ऑफ पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट ऐसा नहीं कर सकती कि अनलिमिटेड पावर उसके पास कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की। ठीक है, ये भी एक फंडामेंटल था कि आप मेजोरिटी में आ गए और आप एक ही साल के अंदर आप कॉन्स्टिट्यूशन को जैसे मर्जी चाहें अमेंड करना है, वो भी लिमिटेड पावर है, उसकी भी कर सकते हैं बट अंडर सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस। यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, दैट बेसिकली की गई जो हमारी कुछ एक ऐसी, जैसे अगर हम बात करते हैं माओइज्म की या कुछ अदर और सेसेशन जो फैक्शंस हैं या कह सकते हैं ग्रुप्स हैं जो कोशिश कर रहे हैं या कर रहे हो सकते हैं, वो जो है सेपरेशन ना हो पाए। पार्लियामेंट्री सिस्टम, ये नॉट प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ सिस्टम। फ्रीडम, डिग्निटी एंड ग्रेविटास टू द इंडिविजुअल्स, ये चीज होनी चाहिए उसके अंदर। Socio-economic justice available to all across the citizenry, making the country as a welfare state, ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है। इफेक्टिव बैलेंस है, कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होना चाहिए। फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल
फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज जिनको बाद में इनकॉर्पोरेट किया जाए, एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के बीच में कोई भी ऐसा कंफ्लिक्टिंग पार्ट नहीं होना चाहिए। और जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, न्याय व्यवस्था वो स्वतंत्र होनी चाहिए, उसके ऊपर किसी तरह का दबाव या प्रभाव नहीं होना चाहिए, प्रेशर एंड इन्फ्लुएंस दैट शुड नॉट बी देयर। ठीक है जी, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है, और अभी भी इसके ऊपर कुछ एक बातें चल रही हैं कि क्या है वो, जिस पर हम बात कर सकते हैं कि इस स्ट्रक्चर के अंदर कुछ एक चीजें और जोड़ दिया। तो अब हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन पॉलिटी फील किससे होती है? अगर हम बात करते हैं इंडियन पॉलिटी की, इंडियन पॉलिटी तो क्या है ये बेसिकली, फील किस चीज से होती है? हाँ जी बताएंगे। हम पढ़ रहे हैं इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी का मतलब बेसिकली मोटे मोटे तौर पर ये कॉनोटेशन देता है गवर्नेंस, ठीक है जी, एंड गवर्नेंस थ्रू some agreed principles, ठीक है जी। तो ये है, अब इन सारे सब एग्रीड प्रिंसिपल के लिए हमारे पास कोई एक डॉक्यूमेंट है, एटलीस्ट इंडिया का रिटन फॉर्म में है, वो है कॉन्स्टिट्यूशन। अब इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हम देखते हैं कि सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है जिसके बारे में हम बात करते हैं, जिसे हम कहते हैं सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज प्रीएम्बल। ठीक है जी, क्या है? प्रीएम्बल। द प्रीएम्बल, और प्रीएम्बल को हम कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी प्रीएम्बल मैं आपको बता देता हूँ, वैसे ये आपके बिल्कुल जुबान पर होना चाहिए काफी हद तक, क्योंकि इसमें से कुछ चीजें पूछ दी जाती हैं। वो प्रीएम्बल के अंदर क्या है कि इट एम्बॉडीज बेसिकली व्हाट प्रीएम्बल के अंदर क्या चीज है, इट्स द फिलॉसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आप इस तरह से कह सकते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी है। प्रीएम्बल इज preamble of constitution, and preamble serve as philosophy of constitution की फिलोसफी। प्रीएम्बल के अंदर जो एक चीज एग्जिस्ट करती है वो आपकी एक स्टेटमेंट है दैट वी पीपल ऑफ इंडिया having solemnly resolved to constitute India into the sovereign, social, secular, democratic republic, and to secure all its citizens justice, social, economic, and political liberty of thought, expression, belief, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of individual and the unity and the integrity of nation. And in our these are the constituent assembly ने इन चीजों को उसमें हमारे प्रीएम्बल में इनकॉर्पोरेट किया। और इन सारे टर्म्स का बेसिकली वो हम करते हैं। और जो पर्पस है कॉन्स्टिट्यूशन में प्रीएम्बल का, वो ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है। कॉन्स्टिट्यूशन derives authority
कॉन्स्टिट्यूशन प्रीएम्बल से ऑथोरिटी ड्राइव करता है, ठीक है जी। और एक चीज और भी करता है, ये ऑब्जेक्ट्स डिटरमाइन करता है, ऑब्जेक्ट्स ऑफ गवर्नेंस डिटरमाइन करता है। बताइए कि एक तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑथोरिटी ड्राइव करता है प्रीएम्बल से, और प्रीएम्बल जो है वो गवर्नेंस के ऑब्जेक्ट्स भी डिटरमाइन करता है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। प्रीएम्बल के बारे में इतना सफिशिएंट है, बाकी चीजें हम और आगे हम देखते हैं। अब हम बात करते हैं जो इसमें मैंने लिस्ट बनाई है, लिस्ट में शेड्यूल के बेसिस कि फर्स्ट शेड्यूल, अब शेड्यूल के बेसिस पर थोड़ा सा देख लीजिए। सबसे पहले तो प्रीएम्बल ही था, और प्रीएम्बल के बाद फिर हम बात करते हैं पार्ट्स के हिसाब से। और सबसे पहला जो पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो है इन द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, हमारा जो कंट्री है वो यूनियन ऑफ स्टेट्स है, और हर स्टेट की अपनी कुछ एक हेलो हेलो, एम आई ऑडिबल? Yes, sir. अब ये देखिए, अब इसको बहुत ज्यादा ये सिंपल सा एस्पेक्ट है, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन इसके अंदर कुछ एक ऐसी हैं। अब मैं इसमें एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा दैट इज वेरी रेलेवेंट फ्रॉम द लास्ट 5-6 ईयर, इट हैज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट एंड करंटली आवर एनडीए गवर्नमेंट इज आल्सो डूइंग दिस, दैट इज जेरीमैंडरिंग। जेरीमैंडरिंग क्या है ये मैं आपको बता दूं। ये सबसे पहले जो है यूएसए में इलेक्शंस के टाइम पर जो गवर्नर थे उन्होंने जो स्टेट्स थे उनकी बाउंड्री पॉलिटिकल एडवांटेज के लिए ये मैं चीज आपसे इसलिए डिस्कस कर रहा हूं बिकॉज वी आर डिस्कसिंग द स्टेट्स एंड देयर टेरिटरीज एंड देयर टेरिटोरियल जुरिसडिक्शंस। बाउंड्रीज को रीडिफाइन किया था, और इन जनरल पॉलिटिकल पार्टी जो पावर में होती हैं वो जेरीमैंडरिंग करती हैं। पार्टी इन पावर अमेंडमेंट ला करके जेरीमैंडरिंग करते हैं। जेरीमैंडरिंग का मतलब है कि हेलो सर एक बार फिर से बता दीजिए जेरीमैंडरिंग का मतलब। हाँ, जेरीमैंडरिंग का मतलब ये है कि किसी भी स्टेट के या किसी भी स्टेट के एक पार्ट ऑफ किसी भी स्टेट के डिस्ट्रिक्ट को या उस स्टेट को इटसेल्फ ना, या तो स्टेट की बाउंड्री को भी आप रीडिफाइन कर सकते हैं, स्टेट के अंदर कोई डिस्ट्रिक्ट है या कोई एक टेरिटरी है आप उसकी बाउंड्री को डिफाइन कर सकते हैं, रीडिफाइन कर सकते हैं फॉर गेनिंग द पॉलिटिकल एडवांटेज। ठीक है। अब ये जो पॉलिटिक्स किस बेसिस पर कर रहे हैं, उसके फैक्टर्स के बेसिस पर जो बेनिफिट आपको पहुंचाएंगे वो फैक्टर्स किन किन एरियाज में आपके फेवर में हो सकते हैं डूइंग रीडिफाइनिंग द टेरिटरी। ठीक है ना, टेरिटरी को रिडिफाइन कर किस तरह से फेवर में हो सकते हैं, बाउंड्री को रिडिफाइन करना फॉर पॉलिटिकल एडवांटेज इज नोन एज जेरीमैंडरिंग। ठीक है जी। अब इस केस में ये होता है कि अब इसके भी कुछ एक मेथड्स हैं जेरीमैंडरिंग के जो अब गवर्नमेंट करती है ना, जिसे बोलते हैं क्रैकिंग एंड पैकिंग।
क्रैकिंग का मतलब ये है कि किसी भी टेरिटरी को इस तरह से बांट देना कि आप मेजोरिटी के इलेक्टोरेट, आपके मेजोरिटी के इलेक्टोरेट ज्यादा आ जाएं उस एरिया के अंदर। जेरीमेंडरिंग, हाँ अब एक बात आती है, जेरीमेंडरिंग की कब जाती है? व्हेन दिस जेरीमेंडरिंग इज डन, व्हेन दिस प्रोसेस इज अप्लाइड। बड़े जनरल इलेक्शंस में ये चीज नहीं होती है, बिग जनरल इलेक्शंस में ये चीज नहीं होती है, बाई इलेक्शंस में काफी होती है। सर कोई बाई एग्जांपल इलेक्शंस में दो, दे सकते हो आप प्लीज? अभी देखिए, अभी ना यूपी का जो ये वाला हमारा जो ये वाला पार्ट है, इस पर जेरीमेंडरिंग चल रही है। मुजफ्फरनगर वाला पार्ट जो हरियाणा से टच हो रहा है, ठीक है ना, यहाँ पर जेरीमेंडरिंग चल रही है। यहाँ पर कुछ एक कम्युनिटीज हैं जिनको एक साथ इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है फॉर द सेक ऑफ पॉलिटिकल एडवांटेज। उनके कुछ एक गांव हैं। सर आपकी वो आवाज गांव कट दो, गई थी पूरी, कुछ समझ नहीं आया। हेलो, हाँ जी हाँ जी, हाँ अब आ रही है आवाज आपको? हेलो हाँ अब आ रही है सर। हेलो, हाँ तो ये जेरीमेंडरिंग की जा रही है। अभी अभी रिसेंटली आपने शायद कुछ टाइम पहले न्यूज वगैरह में पढ़ा भी होगा कि मुजफ्फरनगर वाला जो एरिया है, मुजफ्फरनगर सहारनपुर की जो बेल्ट है जो कनेक्टेड है हरियाणा से, है ना, वहां पर कुछ जाट बाहुल्य एरिया है जिसको अपने फेवर में लेने के लिए रीडिफाइन की जा रही है टेरिटरी। तो ये चीजें इन बेसिकली सब ज्यादा जो इसका फेवरेबल आउटकम होता है किसी भी रूलिंग पार्टी के लिए, वो बाई इलेक्शंस में ज्यादा होता है। और कई बार इसको लॉन्ग टर्म के लिए भी इस तरह से एस्टैब्लिश कर लिया जाता है, काफी ज्यादा एनालिटिक्स इन्वॉल्व होती है लीगली अलाउड है? तो उस बेस, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल अलाउड है। आप यही बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ जो, हाँ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ जो गवर्नमेंट है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके अंदर किसी भी रूलिंग पार्टी को ये राइट है कि अगर वो मेजोरिटी एक्सेस कर लेती है तो वो रिडिफाइन कर सकती है टेरिटरी को। लाइक कि जब यूपी से उत्तराखंड अलग हुआ था तो वो एक तरह का जो मूवमेंट था उसको गवर्नमेंट ने अप्रूव दिया। इन द सेम वे किसी भी दो डिस्ट्रिक्ट को, एक डिस्ट्रिक्ट को दो डिस्ट्रिक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं और किसी भी एग्जिस्टिंग डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री को रिडिफाइन कर सकते हैं। जैसे हम बताते हैं, हमारा अपना जो हमारी अपनी कंस्टिट्यूएंसी पहले गौतम बुद्ध नगर हमारी कंस्टिट्यूएंसी में आता था, अब हमारी कंस्टिट्यूएंसी से हटा करके उसको दूसरी कंस्टिट्यूएंसी से ऐड कर दिया है। और इवन कुछ एक पार्ट जो 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 बाउंड्रीज है इस डिस्ट्रिक्ट की, उनको भी रिडिफाइन कर दिया है। ये चीज होती है और ये बहुत फ्रिक्वेंटली पिछले कुछ टाइम में तो हो ही रही है। अब अगर आप इसको अब आपको टर्म पता चला है तो अब आप शायद इस पर बेसिकली आप इस पर ध्यान देंगे कि ऐसा हो रहा है तो कहाँ हो रहा है। अब से पहले क्या ध्यान दे रहे थे आप इस चीज पर? नहीं सर। आप ध्यान दीजिएगा, जेरीमेंडरिंग ये दिस हैज बीन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर विनिंग द इलेक्शंस एंड बाय इलेक्शंस। तो बेसिकली मेरा टेरिटरी एंड टेरिटरी रिलेटेड एस्पेक्ट में आई वाज इंटरेस्टेड इन टेलिंग दीस थिंग्स टू यू, एंड देयर आर सर्टेन फैक्चुअल इंफॉर्मेशंस व्हिच वी कैन डिस्कस कि भाई जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उस टाइम पर जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर डिफरेंट कमेटीज थी, और गवर्नमेंट ऑफ उस टाइम पर जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो नेशनल कांग्रेस थी, उसने भी इंडियन पीपल से ये प्रॉमिस किया था कि हम कंट्री को कल्चर के बेसिस पर हम स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज करेंगे, कल्चर के बेसिस पर। तो उसके लिए एक कमेटी बनाई गई कि भाई आप देखिए क्या ऐसा पॉसिबल है। तो जो वो कमेटी जब कल्चर के बेसिस पर बनाई गई तो उन्होंने अपनी रिकमेंडेशन दी, और वो कमेटी में पहली जो वो कमेटी बनाई गई थी उसके अंदर आपके जवाहरलाल नेहरू जी थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, पिट्टाभी सीतारमैया थे, उन्होंने वो कमेटी बनाई। अब वो जब वो कमेटी बनाई, उस कमेटी ने जब उस सबकी स्टडी की, उसका सेशन हुआ, उस टाइम पर मुझे ध्यान आ रहा है क्योंकि मैंने पढ़ा था ये, तो जयपुर में सेशन हुआ था, और उसकी जब स्टडी की गई तो उन्होंने पाया कि लिंग्विस्टिक या कल्चर बेसिस पर स्टेट का रिकॉग्निशन पॉसिबल नहीं है। फिर उन्होंने कुछ कोशिश की, बट दैट वाज टेकिंग टाइम एंड इन्फोर्स्ड।
और हालांकि उन्होंने कंडीशन दे दी। हेलो, ऑडिबल? यस हेलो, सर। उन्होंने अपनी रिकमेंडेशन दे भी दी थी। उन्होंने कुछ 10 स्टेट का एक ग्रुप बनाया था, 8 स्टेट का एक ग्रुप बनाया था, 9 स्टेट्स, हाँ 9 स्टेट का एक था, और एक अलग स्टेट था जैसे इंडिया में बात करते हैं यूनियन प्रोविंस यूपी, पहले जो यूनियन प्रोविंस के नाम से जाना जाता था, अब जिसे हम उत्तर प्रदेश बोलते हैं, है ना, तो यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से, यूनाइटेड के नाम से जाना जाता था। तो उन्होंने अपनी रिकमेंडेशन दी थी, वो रिकमेंडेशन दी, उसके बाद वो रिकमेंडेशन वो अरेंज नहीं हो पाई। उसके बाद फिर से साउथ इंडिया में स्पेशली इसको लेकर के काफी मूवमेंट चले, और सबसे पहला स्टेट बना था लिंग्विस्टिक्स के बेसिस पर, वो आंध्र प्रदेश बना था। वो आंध्र प्रदेश बनाना पड़ा क्योंकि उस टाइम पर काफी ज्यादा वहां पर धरना प्रदर्शन सब किया गया था। तो ये उस टाइम पर जो प्रॉमिस किया गया था, तो जो एक कमेटी, उसके बाद फिर से एक कमेटी फॉर्म की गई। उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी, और उसके हेड थे एसके दास साहब। एसके दास साहब ने कहा कि जी आप कल्चर या लैंग्वेज के बेस पर आप बना ही नहीं सकते, बेटर ये है कि अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के बेस पर अगर आप आते हैं तो गवर्नेंस ज्यादा बेहतर होगी, है ना। तो ये चीज जो क्या कहते हैं वो टेरिटरी में बड़ी इंपॉर्टेंट थी, और ये अभी भी ऐसा ही है, क्योंकि हमारे जो अभी भी अगर हम देखें तो बहुत सारे हमारे स्टेट्स जिनकी बाउंड्री में अगर हम उनके कल्चर या लिंग्विस्टिक पैटर्न की बात करें तो काफी हद तक ओवरलैपिंग है एक दूसरे से। अब उस ओवरलैप कैसे हटाएंगे, वो पॉसिबल नहीं था, बस तो उसका एक ही तरीका में हमारे जो रूलर्स हैं, वो कंटेम्प्रेरी रूलर्स को समझ में आया कि बेटर टू हमें एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, जिससे कि हम एक गवर्नेंस प्रॉपर डिलीवर कर पाए, उस तरह से हम काम करें। ठीक है जी, ये एक बेसिकली चीज है। और उसके बाद स्टेट के बाउंड्रीज को और डिस्ट्रिक्ट्स को बनाने का जो तो अब के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। सिटीजनशिप इंडिया में पहले जब ब्रिटिश गवर्नमेंट में जब यूनियन था, उसके अंदर डुअल सिटीजनशिप में 2 रीजन थे। एक तो प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे, क्या कहता कुछ तो उस टाइम सिटीजन के पास डुअल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट ब्रिटिश डोमिनियन में हुआ करता था। सिटीजनशिप आपके पास होगी, दूसरी आपके पास जिस आप प्रोविंस में फॉल करते हैं, जिस स्टेट में फॉल करते हैं, उसको बाद में खारिज कर दिया गया। दैट वाज लेटर रिपील्ड एंड द सिटीजन वर ब्रॉट अंडर द परव्यू ऑफ सिंगल सिटीजनशिप इंडियन, और वो इंडियन सिटीजनशिप 1905 में इस चीज को रखा गया। तो और उसके भी कुछ एक नेचर है, वो उनको उसमें इन्यूमरेट किया गया है। और वो हम कह सकते हैं कि भाई यहाँ एक व्यक्ति जो देश के अंदर ही पैदा हुआ है तो बाई बर्थ होगी सिटीजनशिप, एक हो गई डिसेंट की भी उसके पूर्वज हैं वो भी डिटरमाइन करते हैं कि सिटीजनशिप है। फिर सिटीजनशिप बाई रजिस्ट्रेशन है, विदेश का कोई व्यक्ति आता है हमारे देश में, कहता है कि मुझे सिटीजन चाहिए, और उसके ऊपर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, कोई फेलोनियस एक्ट नहीं उसने किया हुआ है, तो उस बेसिस पर भी कंसिडरेशन किया जा सकता है, या कई बार एजाइलम देने के लिए भी सिटीजनशिप डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है। किसी देश की कोई बड़ी कम्युनिटी हमारे देश की बाउंड्री के अंदर आ गई, रहने लगी, ठीक ठाक तरीके से रह रही है, तो उनको भी फिर सिटीजनशिप जो है वो दे दी जाती है। कई बार कुछ जगहों पर ऐसा हुआ भी है। सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन कोई भी ये एक प्रोसेस है नेचुरलाइजेशन का, कि भी कोई व्यक्ति हमारे देश के अंदर आया और कुछ कहा, नेचुरलाइजेशन का मतलब रहने लगा, उसके डिसेंडेंट्स भी हो यहाँ पर होने लगे, बच्चे भी हुए उसके, वो सब होने के बाद तो वो सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन से दे दी जाती है या दे दी गई है कई केसेस में। और सिटीजनशिप बाय इनकॉर्पोरेटिंग ऑफ टेरिटरी भी होता है कि भाई अगर मान लीजिए अभी
कोई पड़ोसी देश कहता है जी नहीं हम तो आपके साथ हम आपके साथ मर्ज होने के लिए तैयार हैं, वहाँ के सिटीजन्स जो है वो कंसिडर किए जाएंगे एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया। कोई चीजें नहीं है तो आर्टिकल्स हैं उससे रिलेटेड, सिटीजनशिप से रिलेटेड आर्टिकल 5 to 11 ये सब चीज से डील करते हैं सिटीजनशिप से। और अभी रिसेंटली अब हम सब देख ही रहे हैं कि जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है CA और CAB भी बोल देते हैं, सिटीजन अमेंडमेंट बिल, तो वो अभी लाया गया। और सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट इसके बारे में हम कंटेम्प्रेरी इश्यूज में इस पर हम डिस्कस करेंगे। वैसे सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट 1986 में ठीक ठाक इस सब को लेकर के उस टाइम पर भी तो ये चीज मैं आपसे डिस्कस चाहता था डिस्कस तो कर लिया है मैंने, कर लिया आपसे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की, दैट इज राइट्स की। फंडामेंटल राइट्स के लिए मैंने समझाया हुआ है। फंडामेंटल राइट्स ये अपने आप में कंसाइज एक समराइज्ड है। फंडामेंटल राइट्स के अंदर क्या क्या चीजें कवर होती हैं और ये कहाँ से लिया गया है ये भी आपको इसमें मैंने मेंशन किया है, बोरोड फ्रॉम यूएसए एंड फ्रांस। ठीक है जी, ये यहाँ से बोरो किया गया है। मैग्ना कार्टा पार्ट 3 of article 12 to article 35 borrowed from US and France can be suspended during an emergency except article 20 and 21 and fundamental rights available to citizens and not to the foreigners article 15 16 19 29 and 30 इस चीज को डिस्कस करते हैं। तो फंडामेंटल राइट्स के अंदर कौन कौन सी चीज आती हैं? राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम of religion, cultural and educational right to constitutional remedies। ये right to equality को कौन कौन से आर्टिकल डील करते हैं? दैट इज आर्टिकल 14 to 18। right to freedom को आर्टिकल 19 to 22। right to exploitation, right against exploitation को आर्टिकल 23 to 24। right to freedom of religion को आर्टिकल 25 to 28। cultural and exceptional right आर्टिकल 29 to 30। right to constitutional remedies आर्टिकल 32। उसके बाद आप देखिए 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। 19 राइट्स फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेजिडेंस एंड प्रोफेशन। प्रोहिबिशन ऑफ trafficking in human being and forced labor। freedom of conscience and free profession, practice and propagation of religion। protection of interest of minorities। और अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की बात करें तो इसके अंदर ये चीज आती है हैबस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, सर्सियोरेरी, को वारंटो। ये 5 जो है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज हैं जो हमें थ्रू कोर्ट ऑफ लॉ हमें मिलती हैं। और इसका डिटेल में हम डिस्कस करेंगे कि अगर किसी व्यक्ति को बाई चांस एडमिनिस्ट्रेशन से कोई काम होता है तो उसको किस किस तरह की इसको हम बोलते हैं रेमेडीज को बेसिकली हिंदी में अनुतोष। कहने का मतलब है दिस ग्रांट सम काइंड ऑफ satisfaction and these satisfaction are achieved using these remedies available in the constitution। अब ये इन रेमेडीज का एक ठीक ठाक एक्सप्लेनेशन I have mentioned in this document। thereafter come this अब आप यहाँ पे देख लीजिए डॉक्यूमेंट है थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है। yes 14 के बाद हाँ ये 15 yes 15 prohibition of discrimination on the ground of religion, race and sex। 16 equality of opportunity in public employment। abolition of untouchability। These are some of the aspects which has been taken into consideration in defining the gamut of fundamental rights। prospect in respect of conviction for offenses। protection in respect of conviction of offenses। protection of life and personal liberty। protection against arrest and detention in certain cases। prohibition ये जो आपको मैं बता दूं प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस
ये रेमेडीज में डिटेल में डिस्कस इसको किया गया है कि ये हमें कैसे अचीव होता है या किसी भी व्यक्ति को कैसे अचीव होता है. Then prohibition of employment for children and children in factories. Sixth, manage religious affairs. Freedom from payment of taxes for promotion of any religion. Freedom from attending a religious instructions or worship in certain educational institutions. And the rights of minorities to establish and administer educational institutions. ये फंडामेंटल राइट्स के अंदर काफी ये सारे अच्छा खासा काम है जो कवर होता है. इसके बाद आता है बात डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर कि भाई जो स्टेट है उसके कुछ एक अपने गाइडलाइंस होंगे जिनके बेसिस पर वो गवर्नेंस को जिनके बेसिस पर गवर्नेंस होगी. Directive Principle of State Policy contained in Part 4 of the Constitution, Article 36 to 51, borrowed from Ireland. जो Directive Principle of State Policy है, उसको जो है लिया गया है आयरलैंड से. ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, याद रखने वाली इंफॉर्मेशन, इसको याद रखिएगा. These fundamental guidelines in the governance of country, कि भाई देश को कैसे चलाना है और लोगों को कैसे governance दी जानी है. They promote the concept of welfare state. They are classified into 3 categories: socialistic or welfare principles, Gandhian principles, liberal and intellectual principles. Directive principle of state policy aims to secure economic and political social justice through appropriate state action. किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए या कोई काम ना हो पा रहा हो सोसाइटी में, किसी गवर्नमेंट ऑफिस में, तो उसके अगेंस्ट क्या चीजें एग्जिस्ट करती हैं किसी भी सिटीजन. impose the obligations on the state and give direction to take positive action to promote social justice. These are the ideals to keep in mind while formulating policy and pass a law. इन चीजों का ध्यान रखने की जरूरत है जब कोई पॉलिसी या लॉ पास किया जाना है. Directives are not justiciable. Courts cannot approach for their enforcement. Courts cannot be approached for their enforcement. Article 37. डायरेक्टिव्स जो है वो जस्टिसेबल नहीं है, आप कोर्ट में उनके एनफोर्समेंट के लिए नहीं पहुंच सकते. वो आपको जो भी आपके गवर्नेंस के मेजर्स है उनसे आपको अप्लाई करना है. आर्टिकल 38-39 एम्बॉडीज द ज्यूरिस्प्रूडेंशियल डॉक्ट्रिन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस. ज्यूरिस्प्रूडेंस के बारे में मैं यहाँ पे ज्यूरिस्प्रूडेंस का मतलब होता है थ्योरी ऑफ theory of 42nd Amendment 1976 added Article 39A, 43A, 48A, provision for the creation of opportunity for healthy development of children in Article 38. And Dr. B.R. Ambedkar described the directive principle as the instrument of instructions. क्या क्या instructions हैं? Machinery. Machinery means people involved in functioning and delivering governance. Related to ये इससे रिलेटेड आर्टिकल है. ये एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, इसे प्लीज पढ़िए. डायरेक्टिव्स ऑफ द पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. आफ्टर फंडामेंटल ड्यूटीज ये कब ऐड हुई है? Added to the Constitution by 42nd Amendment 1976.
1976 से पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं कवर की गई थी, इनकॉर्पोरेट नहीं किया गया था। एडेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ स्वर्ण कमेटी, स्वर्ण कमेटी के रिकमेंडेशन पर इनको ऐड किया। ओरिजिनली 10 ड्यूटीज बट नाउ इंक्रीज टू 11, was added by 86th Amendment 2002, 93rd Amendment Bill borrowed from the Constitution of Undivided USSR। कहाँ से लिया गया है? अनडिवाइडेड यूएसएसआर से फंडामेंटल ड्यूटीज को बोरो किया गया यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, यूनियन ऑफ सोशलिस्ट सोवियत रिपब्लिक, यूएसएसआर से लिया गया ही। आर्टिकल 15(1)(a) कवर्स किस चीज को कवर करता है, से देख लीजिए। Mandate constitutional respect society nationality, follow ideals of freedom struggle, protect sovereignty integrity of India, defend the country and render national services that when called upon, जब भी जरूरत हो, spirit of common brotherhood, preserve composite culture, protect natural environment, develop scientific temper, safeguard public property, strive for excellence, duty of all parent and guardian to send their children in the age group of 16 to 14 years to school. These are the provisions, or these are the this is the subject matter which has been incorporated in Burma Committee on Fundamental Duties, कुछ कमेटीज हैं। इसके बाद हम ये हम इसको सही रहेगी। Thereafter we come and we discuss the next point। ये आपको डॉक्यूमेंट मिला है, मिल गया? अभी नहीं मिला है? हेलो हेलो हेलो, यस सर। डॉक्यूमेंट ये देखिएगा, आपको शायद इस पर आपके ड्राइव पर एक्सेस हो गया होगा। हाँ सर, है हमारे पास से। तो अभी हम और कुछ चीज़ें इसमें देखते हैं आगे की कि और क्या चीज़ें हैं। तो ये अब हम बेसिकली गवर्नमेंट के एस्पेक्ट को हम देखते हैं कि अब गवर्नमेंट जो है ड्यूटीज के बाद अब गवर्नमेंट का फ्रेम क्या है, वो वायर फ्रेम के बारे में समझते हैं। ये सारे शेड्यूल्स लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। ये छोटा सा फ्लो चार्ट है। Levels of government: union government responsible for administration and governance of whole country, state government and local government। इसको थोड़ा सेपरेटली डिस्कस किया गया है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस एंड म्युनिसिपैलिटीज और मेट्रोपॉलिटन एरियाज। अब इसके बाद आता है आपके पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के अंदर स्टेट एंड यूनियन लेवल पर तो बहुत ज्यादा हमें जो टीयर है, टीयर की हम बात करते हैं। टीयर जो है वो इस लेवल पर काफी, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के लेवल पर और म्युनिसिपैलिटी के लेवल पर। अब आप ये देख लीजिए, यहाँ पर आपको दिखेगा कि जिला पंचायत है, पंचायत समिति है, ग्राम सभा है। ये रूरल के केस पर है। रूरल के केस में, रूरल एरिया में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है। पंचायती राज किस तरह से अचीव किए जाने की कोशिश की जा रही है करंटली यूजिंग कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। तो अब जिला पंचायत है, डिस्ट्रिक्ट लेवल यूनिट है। अब डिस्ट्रिक्ट लेवल यूनिट पर क्या क्या चीजें होती हैं? बजट का एग्जामिनेशन होता है, ऑर्गेनाइजिंग मीटिंग, सुपरवाइज वर्क ऑफ द पंचायत समिति, है ना। ये चीज जिला पंचायत के लेवल पर होती है। पंचायत समिति क्या करती है? जो ब्लॉक लेवल पर होता है, एग्जीक्यूटिव ऑर्गन होता है, ग्राम सभा होती है। अब इनका काम क्या होता है? बेसिकली प्रिपेयर प्लान करते हैं, परफॉर्म सोशल वेलफेयर करते हैं या डेवलपमेंट एक्टिविटीज करते हैं।
उसके बाद फिर हम आते हैं बात ग्राम सभा की, तो ये सबसे छोटी यूनिट है, लोएस्ट यूनिट है, इनडायरेक्टली इलेक्टेड, जिसमें हम बात करते हैं ग्राम प्रधान है ना, और ग्राम सभा के मेंबर्स हैं ना, ग्राम प्रधान, ग्राम परिषद, ग्राम परिषद होती है, आप लोग जाते होंगे गांव में, देखा हुआ ग्राम प्रधान होता है, ग्राम परिषद होती है हाँ? कभी आपने ये इलेक्शंस कभी देखे हों, डायरेक्टली कभी इन्वॉल्व हो तो आपको पता चलेगा। जैसे ऐसे इसी तरह से हमारे यहाँ पर नगर पंचायत, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनिसिपल काउंसिल, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, और उसके बाद वार्ड बेस्ड इलेक्शंस भी होते हैं जिनको हम वार्ड मेंबर्स बोलते हैं, और वो बेसिकली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के पार्ट होते हैं। So this is the kind of democratic structure. Democratic structure or essence of democracy is democracy is achieved. Essence. ये इस तरह से कि जिससे कि एकदम ग्रास रूट लेवल पर भी जो रिप्रेजेंटेशन है वो पहुंचे और गवर्नेंस में इफेक्टिव गवर्नेंस और एफिशिएंसी इंक्रीज। तो ये बात है। अब हम बात करते हैं सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट की। पार्लियामेंट्री सिस्टम, फेडरल सिस्टम, सेंट्रल स्टेट रिलेशन, इंटर स्टेट रिलेशंस एंड इमरजेंसी प्रोविजंस। ये सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है जिसके बेसिस पर हमारी गवर्नेंस जो है वो इम्प्लीमेंट हो रही है। सबसे पहला पार्लियामेंट्री सिस्टम, the Constitution of India provides the parliamentary form of the government both at the center and the state. Article 74 and 75 deals with the parliamentary system in the center, and Article 163 and 164 in the states. ये हमें पार्लियामेंट्री सिस्टम ये आर्टिकल्स इसको डील करते हैं कि क्या उसका फॉर्मेशन है और स्ट्रक्चर क्या है। Modern democratic government are classified into parliamentary and presidential on the basis of nature of relation between the executive and legislative organ of the government, और इंडिया के अंदर बेसिकली पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंट इंडिया के अंदर इलेक्ट। अच्छा, रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक में क्या अंतर है कुछ बताएंगे? रिपब्लिक एंड डेमोक्रेटिक। हेलो गौरिका, हेलो हेलो कुशागर, कुशागर।